Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today I am going to explain you about the meanings and question answers of chapter 7, which videos you have already seen. I hope you have gone through the videos of chapter 7 which I explained you previously, and now today we are going to move on to our worksheet explanation. So first of all, I would like to explain you the meanings of this chapter, chapter number 7, that is against the odds. So the first meaning is against the odds, the name of the chapter only. उसका मतलब क्या होता है? That is, it means trying to do or achieve something that seems impossible. मतलब ऐसा कुछ कर दिखाना जो impossible लगता हो. The second one is amputee. What do you mean by amputee? It means a person who has had an arm or a leg cut off in a surgical operation. कुछ surgical operation उनके साथ ऐसी कुछ इंसिडेंट हुआ हो जिसमें उनके सर्जिकल ऑपरेशन में उनका आर्म या लेग काटा गया हो, उन्हें कहते हैं एम्प्यूटी. द थर्ड वन इज सिविलियन. व्हाट डू यू मीन बाय सिविलियन? अ रेगुलर पर्सन who is not a member of the armed force or the police. एक रेगुलर पर्सन होता है जो आर्म्ड फोर्स और पुलिस का मेंबर नहीं होता है. द फोर्थ वन इज रेसिस्टिंग. इट मीन्स ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. मतलब कुछ होने वाला हो उसको स्टॉप करने की ट्राई करना. द फिफ्थ वन इज डिटर्मिनेशन. व्हाट इज इट? डिटर्मिनेशन. It means the quality that makes a person continue trying to do something even when it is difficult. मतलब एक पर्सन में, एक इंसान में जो क्वालिटी होती है कि वो हमेशा कुछ न कुछ अनइवन जो वो डिफ़िकल्ट होता है ऐसा टास्क हमेशा करते रहे. द सिक्स्थ वन इज हेल्पलेस. It means unable to take care of herself or do things without the help of others. मतलब किसी और की हेल्प ना लेके वो चीज़ कर दिखाना. The seventh one is afresh. Means start again, especially with new ideas. Means starting से शुरू करना कुछ नए आइडियाज़ के साथ. The eighth one is adversely affected. मतलब had a negative और हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन माई हेल्थ. मतलब कुछ एडवर्सली, कुछ अलग इफ़ेक्ट हो हेल्थ पे, हार्मफुल इफ़ेक्ट हो, उसे कहते हैं एडवर्सली अफेक्टेड. द नाइन्थ वन इज़ एक्स्टम्ड. मीन्स यूज टू. उस चीज़ से, कोई भी चीज़ से यूज टू हो जाना. द टेंथ वन प्रोस्थेटिक. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्थेटिक? इट मीन्स एन आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी. जो आर्टिफिशियल पार्ट होता है, जो किसी के आर्म या लेग्स कट किए जाते हैं और उसकी जगह पे कोई आर्टिफिशियल पार्ट लगाया जाता है, उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक. इट मीन्स फॉर एग्जांपल एन लेग. देन द 11th वन इज ट्रेमेंडस. ट्रेमेंडस मीन्स व्हाट? वेरी ग्रेट, एकदम बहुत ही अच्छा. द 12th वन इज गेट इन द वे. Now what do you mean by get in the way? To prevent somebody from doing something. किसी को कुछ चीज़ करने से रोकना. The 13th one sugarcoat. Sugarcoat means what? To make something sound better than it really is. मतलब बहुत अच्छी लैंग्वेज में जो एक्चुअल में ख़राब है बट फिर भी उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, बोलना. Then the 14th one conquered your inner Everest. Conquered your inner Everest. It means overcame her own doubts and fears. Means अपने डाउट्स और फियर्स को ओवरकम, मतलब उसको करके दिखाना, जो चीज़ इम्पॉसिबल है फिर भी कर दिखाना. द 15th वन इज स्टर्नस. व्हाट डू यू मीन बाय स्टर्नस? नीडिंग ग्रेट एफर्ट एंड एनर्जी. जिसमें बहुत ही एफर्ट की ज़रूरत पड़े और एनर्जी की ज़रूरत पड़े. देन द 16th वन इज
near death experiences. What do you mean by near death experiences? It means dangerous situation, बहुत ही खराब situation where she almost died, जैसे लगता है कि almost मरने की कतार पे हो वैसे. Then the 17th one is spirit crushing pain. What do you mean by spirit crushing pain? It means pain that was so intense that it almost destroyed her confidence. ऐसा पेन, ऐसा दर्द जो ऑलमोस्ट उनका जो किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस हो वो ख़त्म कर देता है. Then the 18th one is grant. What do you mean by grant? It means a sum of money that is given by an organization to be used for a particular purpose. एक पैसे का कुछ अमाउंट दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए. That is called grant. Then 19th one is sponsorship. It means it is a sum of money given by a company. ये एक ऑर्गेनाइजेशन देती है ग्रांट एंड स्पॉन्सरशिप कौन देता है? एक कंपनी देती है. दैट कैन बी यूज्ड टू पे फॉर समवन्स ट्रेनिंग और एजुकेशन. किसी एजुकेशन और किसी की ट्रेनिंग के लिए ये अमाउंट जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्सरशिप. देन swivel. What do you mean by swivel? To turn or more amount around a fixed point. एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ घूम जाना, टर्न होना. The next 21st is Sherpa. Who is called Sherpa? He is a person from the Himalayan region who helps mountaineers by acting as a guide. एक हिमालयन रीजन का आदमी होता है जो हेल्प करता है माउंटेनियर्स को गाइड की तरह. Then the 22nd one is summit. What do you mean by summit? It means the top of a mountain. माउंटेन के टॉप को बोलते हैं summit. Then 23rd is trudged. What do you mean by trudged? It means walked slowly or with heavy steps. एकदम धीरे धीरे और एकदम heavy steps, मुश्किल से चलना. Then 24th is critically low. It means very seriously and dangerously low. बहुत ही serious situation और dangerous situation. Then the 25th is suffocating. Suffocating it means finding it difficult to breathe normally. बहुत ही मुश्किल से सांस लेने की पोजीशन जो हो, डिफ़िकल्टी हो सांस लेने में, that is called suffocating. Then 26th is descent. Now descent means the action of going down. ऊपर की कहीं पे आप चढ़े हो वहाँ से नीचे उतरना, that is called descent. Then the next is underprivileged. Underprivileged it means having less money and fewer opportunities than most people in the society. जिसके पास बहुत ही कम पैसे हो और बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हो कुछ भी चीज़ करने के लिए, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको. Then the 28th is disabilities. What do you mean by disabilities? It means physical conditions that mean that they cannot use parts of their bodies completely or easily. ऐसी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, बॉडी की ऐसी कंडीशन जहाँ पे कुछ बॉडी के पार्ट्स वो एकदम इजीली और completely यूज़ नहीं कर पाते हैं. Then the last one is fruition. It means the successful result of a plan, process or an activity. कुछ भी एक्टिविटी या प्रोसेस या प्लान आपने करने की कोशिश की और उसमें सक्सेस मिल जाए, वो रिजल्ट को दैट इज़ कॉल्ड फ्रूशन. Now our meanings are completed. Let's move on to the question answers. So our first question is, what major decision did Arunima take? Under what circumstances did she decide to do this? मीन्स कौन सा डिसीजन उसने मेजर डिसीजन लिया था अरुणिमा ने और किस सर्कमस्टेंसेस में, किस सिचुएशन में उसने ये डिसाइड किया था. सो आवर आंसर इज अरुणिमा डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. उसने कौन सा डिसीजन लिया था? एज आई एक्सप्लेन्ड यू इन द चैप्टर, शी डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट चढ़ने का डिसीजन लिया था.
Then she took this decision when she was lying on a hospital bed and feeling very weak. उसने ये डिसीजन कब लिया? जब वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी थी, सोई हुई थी, एंड बहुत ही वीकनेस उनको फील हो रही थी दैट टाइम. हर लेफ्ट लेग हैड बीन एम्प्यूटेड. उनका जो लेफ्ट लेग था वो काटा गया था और वहाँ पे आर्टिफिशियल लेग यहाँ लगाया गया था. एंड अ रॉड हैड बीन इंसर्टेड इन हर राइट लेग फ्रॉम नी टू एंकल. और उनके राइट लेग में क्या डाला गया था? ऑपरेशन करके राइट लेग में रॉड इंसर्ट किया गया था. कहाँ से? नी से एंकल तक का. टू होल्ड द ब्रोकन बोन्स टुगेदर. जो उनके राइट लेग में भी बोन्स टूट गए थे उनको साथ में जोड़ के रखने के लिए एक रॉड डाला गया था. शी फेल्ट दैट शी नीडेड टू स्टार्ट अफ्रेश. और उन्हें तब ये लगा कि उन्हें फिर से स्टार्ट करना चाहिए. देन द नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, हु इज़ बचिंद्री पाल? हाउ डिड शी एनकरेज अरुणिमा? बचिंद्री पाल कौन है और उन्होंने अरुणिमा को कैसे एनकरेज किया? So, Bachindri Pal is the first Indian woman who successfully climbed Mount Everest. वो एक इंडियन वुमेन है जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, वो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे. She encouraged Arunima by telling her that she had made a huge decision which showed that she had managed to conquer her doubts and fears. उन्होंने अरुणिमा को क्या कैसे एनकरेज किया? कहते हुए कि उसने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपने फियर्स को कॉन्कर कर लिया है, अपने फियर्स पे, डर पे जीत पा ली है. नाउ शी नीडेड टू क्लाइंब द माउंटेन ओनली टू शो द वर्ल्ड व्हाट शी वॉज मेड ऑफ. अब उन्हें खाली एक माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाना है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि वो किस लिए बनी है. नाउ द थर्ड वन इज, हाउ डिड अरुणिमा ट्रेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? अरुणिमा को कैसे ट्रेनिंग मिली माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए? अरुणिमा डिड अ बेसिक कोर्स फ्रॉम द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल अरुणिमा ने क्या किया? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में बेसिक कोर्स किया. उसके बाद दिस वॉज फॉलोड बाई 18 months ऑफ स्टर्नस ट्रेनिंग. और इसमें क्या था? बहुत ही मेहनत की ट्रेनिंग थी, बहुत ही डेंजरस ट्रेनिंग भी दी गई थी उनको 18 months की. देन शी क्लाइम्ड स्मॉलर बट नो लेस डेंजरस माउंटेन. और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्होंने छोटे छोटे माउंटेन्स क्लाइंब किए बट वो भी बहुत ही डेंजरस थे. हैड अ कपल ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस. और उनको ऐसे ऐसे ख़राब एक्सपीरियंस भी हुए कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो नियर डेथ के एकदम नियर थी. एंड अंडरवेंट स्पिरिट क्रशिंग पेन. और उनको बहुत ही दर्द भी हुआ क्योंकि उनके दोनों लेग्स में प्रॉब्लम थी. शी सपोर्टेड हर सेल्फ बट देन ऑल्सो शी सपोर्टेड. उन्होंने खुद को सपोर्ट किया विथ अ ग्रांट. कहाँ से सपोर्ट किया? एक ग्रांट मिली उनको फ्रॉम द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उनको सम ऑफ मनी मिला ताकि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके. और उसके बाद देन टाटा स्टील प्रोवाइडेड हर विथ अ जनरस स्पॉन्सरशिप. और फिर टाटा स्टील ने उन्हें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में और माउंट एवरेस्ट चढ़ने में. That allowed her to focus completely on the impossible task that lay ahead. और ये जो उनके सामने इम्पॉसिबल टास्क था माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, वो कंप्लीट करने में उन्हें बहुत ही हेल्प मिली इससे. नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड शी फेस व्हेन शी ट्राइड टू क्लाइंब? क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ी जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी, तब उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी? Arunima's prosthetic limb created unique problem when she tried to climb. जब वो माउंटेन चढ़ने की कोशिश करती तब उनके जो प्रोस्थेटिक लिम्ब, आर्टिफिशियल जो लेग लगाया हुआ था उनको, उससे बहुत ही उन्हें प्रॉब्लम होती थी. द एंकल एंड हील वुड कॉन्स्टेंटली स्विवेल एज शी ट्राइड टू क्लाइंब. और जब भी वो क्लाइंब करती थी तो उनका जो एंकल और हील के बीच में भी रॉड डाला हुआ था, वो हमेशा क्या हो जाता तो उनको बहुत ही चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, टर्न हो जाता था, मेकिंग हर लूज़ हर ग्रिप ऑफन. और उस वजह से वो जब चढ़ती थी तो उनकी ग्रिप लूज़ हो जाती थी.
एनी प्रेशर ऑन अ राइट लेग, और उनके जो राइट लेग में रॉड था वो राइट लेग पे कुछ प्रेशर आता तब, विच वॉज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टील रॉड, जिसको रॉड से अंदर रॉड डाल के ऑपरेशन किया हुआ था और साथ में बंधा हुआ था, कॉज्ड इंटेंस पेन, और उसमें भी उन्हें बहुत दर्द होता था। देन आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डेथ जोन, हाउ डिड इट गेट इट्स नेम। अब डेथ जोन किसे कहा गया है और उसे क्यों ये नाम दिया गया है। सो द आंसर इज every climber who aspires to climb Mount Everest has to cross 4 camps on the way to the peak। जो भी क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट चढ़ते थे उन्हें क्या करना पड़ता था, 4 कैंप को पार करने पड़ते थे जो उनके पीक के रास्ते में पड़ते थे। वंस कैंप 4 हैज़ बीन रीच्ड, एक बार जब कैंप 4 पहुंच गए उसके बाद देयर्स 3500 फीट टू द सबमिट, तो टॉप तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3500 फीट बचे थे। और इस एरिया को, दिस एरिया इज़ नोन एज द डेथ जोन, और इस एरिया को कैंप 4 के बाद का जो 3500 फीट का एरिया था टॉप तक पहुंचने में, उसे कहा जाता था डेथ जोन। क्यों कहा जाता था? बिकॉज मैनी क्लाइंबर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स देयर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंबर्स ने अपनी जान गुमाई है, उनकी लाइफ वहाँ पे लॉस्ट हो गई थी। दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड द डेथ जोन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड अरुणिमा डू आफ्टर शी रीच्ड द समिट, वाई। अब अरुणिमा ने क्या किया जब वो माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुँच गए, तब उन्होंने क्या किया और क्यों। When Arunima reached the summit of Mount Everest, she raised the Indian flag on the peak। जब वो माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुँचे तब उन्होंने जो इंडियन फ्लैग था वो पीक के ऊपर रेज किया, लहराया। देन शी यूज्ड द लास्ट ऑफ हर ऑक्सीजन टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑफ हर सेल्फ ऑन द पीक, और उनके पास जो लास्ट ऑक्सीजन अब बचा था वहाँ पहुँचने के बाद, तब उन्होंने उससे क्या किया, उन्होंने खुद के पिक्चर्स लिए माउंट एवरेस्ट पे, वीडियोस लिए पीक के ऊपर चढ़ के। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट था, फॉर हर टू हैव विजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ हर अचीवमेंट टू शो टू द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास ये विजुअल रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़रूरी था पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए। नाउ आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज विच पीक्स हैज शी क्लाइंब्ड सो फार एंड विच वंस आर लेफ्ट। अब तक अरुणिमा ने कितने पीक्स क्लाइंब किए हैं और कितने बाकी है। सो फार अरुणिमा हैज़ क्लाइंब्ड 5 पीक्स, उन्होंने 5 पीक्स क्लाइंब किए हैं। फर्स्ट वन इज़ माउंट एवरेस्ट इन एशिया, विच वन आई एक्सप्लेन यू इन द चैप्टर कि माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइंब किया। उसके बाद माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो वो क्लाइंब किया सेकेंड। थर्ड माउंट एल्ब्रस इन यूरोप, यूरोप में एक माउंटेन क्लाइंब किया। देन माउंट कोस्क्यूस्को इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंब किया फोर्थ। एंड फिफ्थ वन माउंट एकनकागुआ इन साउथ अमेरिका। दीज 5 पीक्स अब तक उन्होंने क्लाइंब किए। अब कौन से बाकी है? शी स्टिल प्लान्स टू क्लाइंब डेनाली पीक इन नॉर्थ अमेरिका। अब डेनाली पीक जो है नॉर्थ अमेरिका में वो उन्हें क्लाइंब करना है। एंड विंसन मैसिफ द हाइएस्ट पीक इन एंटार्क्टिका। दीज 2 पीक्स आर रिमेनिंग टू क्लाइंब। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लेसन्स दैट अरुणिमा हैज़ लर्नड फ्रॉम माउंटेनियरिंग। कौन से लेसन्स उन्होंने लर्न किए माउंटेनियरिंग से। So climbing mountain has taught Arunima the most valuable life lesson। उनको क्लाइंबिंग माउंटेन्स चढ़ने से उन्हें बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ के लेसन्स सीखने मिले हैं। इट हैज़ टॉट हर अबाउट कॉन्फिडेंस, सबसे पहले कॉन्फिडेंस खुद में रखना चाहिए वो सिखाया है। देन टीम बिल्डिंग, टीम में कैसे वर्क करना चाहिए, एंड लीडरशिप, दिस ऑल लेसन्स शी हैज़ लर्नड। बट above all it has taught her to be humble। बट ये सब उनको मिलने के बाद भी उन्हें सबसे बड़ा लेसन क्या सीखने मिला कि हम कहीं भी पहुंच जाए बट हमें हम्बल, दूसरों के तरफ बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए, अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए गुड ह्यूमन बीइंग की तरह।
शी सेज दैट इट डजेंट मैटर, वो कहती है कि इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, वॉट यू अचीव इन लाइफ, कुछ भी आप कहीं भी पहुंच जाओ, सबसे ऊपर पहुंच जाओ, बट देन ऑल्सो वॉट मैटर्स इज़ हाउ दोज अचीवमेंट्स मेक यू अ बेटर पर्सन, आपको हमेशा अच्छे पर्सन बन के रहना है। हाउ यू ट्रीट अदर्स इज़ वॉट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बींग, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करते हो वो आपका गुड नेचर बताता है, गुड ह्यूमन बींग आपको बनाता है। सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट answer. MCQs are given in your textbook that you have to write it this way, first the question and the correct option in your FNB. So the first one is Arunima decided to climb Mount Everest because, क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करेगी? द आंसर इज़ बी ऑप्शन, इट वॉज एन इम्पॉसिबल ड्रीम फॉर हर, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो उनके लिए इम्पॉसिबल ड्रीम है वही उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। देन द सेकेंड वन इज अरुणिमा बिकेम यूज्ड टू हर प्रोस्थेटिक लिम्ब क्विकली बिकॉज, वो अपने प्रोस्थेटिक जो आर्टिफिशियल लिम्ब उन्हें पैर लगाया गया था उससे यूज टू जल्दी हो गई, क्यों? द आंसर इज ए ऑप्शन, शी हैड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, उनमें बहुत ही मेंटल स्टेमिना थी, बहुत ही मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिससे उन्हें ये हेल्प मिली। देन द थर्ड वन इज व्हेन हर ऑक्सीजन सप्लाई रैन आउट, जब उनका जो ऑक्सीजन सप्लाई था वो ख़त्म हो गया, दैट टाइम व्हाट हैपन? सी ऑप्शन, शी फाउंड अनदर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, उन्हें वहाँ पे किसी का दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ मिला। द लास्ट वन इज डेनाली पीक विल बी हार्ड टू क्लाइम बिकॉज, डेनाली पीक जो है वो उन्हें चढ़ने में बहुत ही हार्ड लगेगा, क्यों? इट्स द सी ऑप्शन, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रैक, मतलब वहाँ पैसों की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चढ़ पाएंगी बट एक्चुअल में उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ट्रैक, दैट्स वाई इट विल बी हार्ड टू क्लाइम। So dear children, here I end up my explanation of chapter number 7 against the odds, question answers, meanings and MCQ. So you all have to complete your FNB, you have to write first of all the meanings, the question answer and then the MCQ with black and blue pen, how you all have done in the previous chapter. So thank you dear children.